بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر ایز اے سسٹم۔ سسٹم کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں۔ سسٹم کسے کہتے ہیں؟ سسٹم وہ نظام ہوتا ہے جو کسی بھی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ سب سے اہم کام مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے، اور سسٹم بنانے کے لیے جتنے بھی پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام پارٹس الگ الگ بھی کام کرتے ہیں اور سسٹم کو چلانے کے لیے کلیکٹیولی بھی کام کرتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں دی گئی تھی۔ ایک کار کی مثال دی گئی تھی اور ہیومن باڈی پارٹ کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر ایز اے سسٹم، کہ کمپیوٹر کے اندر ایک جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ کویشچن ہے، ایکسپلین کمپیوٹر ایز اے سسٹم۔ کمپیوٹر ایز اے سسٹم اس کی وضاحت کریں ود اس آبجیکٹو، اور اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مختلف پارٹس۔ اے کمپیوٹر از اے کمپلیکس سسٹم، یہ ڈیفینیشن ہے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ کمپلیکس سسٹم ہے۔ کمپلیکس سسٹم اس سسٹم کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک سے زیادہ سسٹم ہوتے ہیں۔ ڈیزائن ٹو پروسیس ڈاٹا۔ کمپلیکس سسٹم اس لیے ہے کیونکہ اسے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ڈاٹا کو پروسیس کر سکے، ڈاٹا پر کام کر سکے، اینڈ پرفارم ٹاسک، اور جو ٹاسک اس کو دیا جائے، جو کام اس کو دیا جائے اس کو پرفارم کرے، یعنی اس کا پورا کرے اکارڈنگ ٹو اے سیٹ آف انسٹرکشن، جس طریقے سے ہدایات دی جائیں ان ہدایات کے مطابق۔ A computer is a complex system designed to process data and perform tasks according to a set of instruction۔ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ کمپلیکس سسٹم ہے، پیچیدہ سسٹم ہے، کیونکہ پیچیدہ سسٹم اسے کہتے ہیں جس میں ایک سسٹم کے اندر ایک سے زیادہ سسٹم مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، ڈیٹا پر کام کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے، اور پھر جو ایکشن لیتا ہے اسے پورا بھی کرتا ہے، پرفارم ٹاسک کو پورا کرتا ہے اکارڈنگ ٹو اے سیٹ آف انسٹرکشن، ہدایات کے مطابق۔ تو یہاں تک کمپیوٹر ایز اے سسٹم کی ڈیفینیشن ہے۔ آبجیکٹو، مقصد کیا ہے، کیوں کمپیوٹر کو ایز اے سسٹم بنایا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ دا مین آبجیکٹو آف اے کمپیوٹر، جو مین آبجیکٹو ہے، مین پرپز ہے آف اے کمپیوٹر از ٹو پرفارم کمپیوٹیشن، کہ وہ کیا کرے، حساب کتاب کے کام کو جو ہے وہ کرے۔ فرض کرے ہم کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں یا میتھ کا کوئی سوال دیتے ہیں، جیسے 2+2 = ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر ہمارے پاس لے کر آئے گا 4۔ ایک قسم کا منی کمپیوٹر، جیسے آپ کیلکولیٹر سمجھ لیں، تو اس طرح کا کمپیوٹیشن جو اس کا مین مقصد ہے، مین جو ہے آبجیکٹیو ہے، وہ ہے کمپیوٹیشن، حساب کتاب کرنا، پروسیس ڈیٹا کو پروسیس کرنا، جیسا کہ یہاں پہلے اس کی ڈیفینیشن میں بتایا گیا تھا، اینڈ ایکسیکیوٹ ڈفرینٹ ٹاسک ایفیشینٹلی، اور ایکسیکیوٹ کرنا ہے، ایکسیکیوٹ سے مراد سر انجام دینا ہے، مکمل کرنا ہے، ڈفرینٹ ٹاسک، مختلف ٹاسک کو ایفیشینٹلی، مؤثر طور پر۔ کہ دا مین کمپیوٹر کا جو مین آبجیکٹو ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے کہ وہ پرفارم کرے کمپیوٹیشن کو، حساب کتاب کے کام کو، پروسیس ڈیٹا کو پروسیس کرے، اس پر ایکشن لے، جو ہدایات اس کو دی جاتی ہیں، اینڈ ایکسیکیوٹ، اور اس پر وہ عمل کرے، ڈفرینٹ ٹاسک، مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں، مختلف کام دیے جاتے ہیں، اور اس کا کام ہے، مین آبجیکٹو ہے کہ وہ ہر کام کو جو ہے وہ ایفیشینٹلی کرے۔ فار ایگزامپل، پرسنل کمپیوٹر آبجیکٹو، ایک پرسنل کمپیوٹر جو ایک شخص کا اپنا ذاتی کمپیوٹر ہے، آبجیکٹو از ٹو رن سافٹ ویئر اپلیکیشن، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر اپلیکیشن کو رن کرے۔ سافٹ ویئر کون سی اپلیکیشن ہوتی ہیں؟ جو کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں، وہ سچ ایز ورڈ پروسیسر،
वर्ड प्रोसेसर जैसे हम की बोर्ड के ज़रिए से कोई वर्ड प्रेस करते हैं, वर्ड एंटर करते हैं, तो उस वर्ड की जो सेटिंग है उसका पे ऊपर जो एक्शन लिया जाता है तो वो उसकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए से ही लिया जाता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए से काम किया जाता है, उसकी वेबसाइट्स होती हैं। एंड गेम्स तो वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेस, और उसके अंदर गेम्स हैं जो मुख्तलिफ कंप्यूटेशन प्रोसेस के ज़रिए से काम करती हैं। तो एग्जांपल में क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करना। जैसा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एग्जांपल्स है वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र एंड गेम थ्रू वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेस, और इस काम के लिए मुख्तलिफ कंप्यूटेशन के प्रोसेस जो होते हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर एज अ सिस्टम का। अलग से भी सवाल आ सकता है, डिफाइन कंप्यूटर एज अ सिस्टम, और डिटेल से भी आ सकता है, एक्सप्लेन कंप्यूटर एज अ सिस्टम विद इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपने ये दोनों पार्ट्स मुकम्मल करने हैं। कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को। एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि काम करते हैं। A computer composed of many essential components। एक कंप्यूटर कंपोज किया गया है, बनाया गया है, जोड़ा गया है ऑफ मैनी इसेंटियल कंपोनेंट, जिसके अंदर बहुत से लाजमी कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं दैट ऑपरेट, जो ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इन कंजक्शन, इकट्ठे होकर। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं वो नीचे दिए गए हैं। डिफाइन पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट्स को कहते हैं। कंप्यूटर कंपोज ऑफ मैनी इसेंटियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट इन कंजक्शन, कि एक कंप्यूटर जो है वो कंपोज किया गया है, बनाया गया है बहुत से लाजमी कंपोनेंट पार्ट्स के साथ, दैट ऑपरेट, जो ऑपरेट कर रहे हैं इन कंजक्शन, मिलकर। एक अकेला पार्ट कोई काम नहीं करता। फर्स्ट करें एक मॉनिटर लिया गया है, तो मॉनिटर सामने पड़ा हुआ है, जब तक मॉनिटर के साथ सीपीयू, कीबोर्ड या माउस के फंक्शन को साथ उसके कनेक्ट नहीं किए जाएंगे, साथ नहीं जोड़े जाएंगे, तो वो जो मॉनिटर है वो कोई काम नहीं करेगा। इसी तरीके से सीपीयू अलग है, तो सीपीयू अलग पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ बाकी पार्ट्स नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर क्या है, कंपोज किया गया, बनाया गया है मैनी इसेंटियल कंपोनेंट्स, उसके अंदर बहुत से लाजमी कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इन कंजक्शन, जिनको मुकम्मल जोड़कर काम किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं। इंटरफेस कंपोनेंट मेन पार्ट है। क्वेश्चन आपका आएगा डिस्क्राइब इंटरफेस कंपोनेंट्स, या फिर आएगा एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ इंटरफेस कंपोनेंट, के उसके पार्ट्स की, इंटरफेस कंपोनेंट्स में से कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आप बताएं। तो ये इंटरफेस का अलग छोटा सा टॉपिक है। कंपोनेंट के अंदर सारे टॉपिक आएंगे और हर टॉपिक का अलग अलग से भी क्वेश्चन है। तो इंटरफेस क्या है, कंपोनेंट तो पार्ट्स को कहते हैं, और इंटरफेस में कौन से पार्ट्स आते हैं। इंटरफेस कंपोनेंट रेफर टू द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये वो पार्ट्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं, बुनियादी हैं कंप्यूटर सिस्टम के। और इसमें दो बुनियादी पार्ट्स कौन से हैं, एक है इनपुट और दूसरा क्या है, आउटपुट। इंटरफेस कंपोनेंट्स में दो फंडामेंटल पार्ट्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का क्या काम है, इसमें कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं, और आउटपुट का क्या काम है और उसमें कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं। इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस ये कंप्यूटर के दो इंतहाई अहम तरीन पार्ट्स हैं, और ये इनपुट डिवाइसेस हैं विच अलाउ यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि वो कंप्यूटर पर इंटरैक्ट करे, काम करे। तो इंटरफेस कंपोनेंट फंडामेंटल, बुनियादी हैं, इसेंशियल पार्ट्स हैं, और इसके दो पार्ट हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में कीबोर्ड और माउस शामिल है, जबकि आउटपुट में क्या शामिल है,
Computer output devices such as monitor and printer. मॉनिटर एंड प्रिंटर ये वो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिन पर हमें डाटा शो होता है। यानी मॉनिटर पर जब भी कीबोर्ड या माउस के ज़रिए से कोई डाटा हम इंटर करते हैं तो मॉनिटर वो उसका रिज़ल्ट दिखाता है, उसका आंसर दिखाता है, तो मॉनिटर आउटपुट में होगा। और प्रिंटर के ज़रिए से जब भी हम कोई पेज वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो वो पेज के ज़रिए उसका लेआउट हमें बाहर निकल कर हमारे सामने आएगा, तो ये भी हमारे पास आउटपुट कहलाएगा। तो इनपुट में कीबोर्ड एंड माउस हैं, जबकि आउटपुट में मॉनिटर एंड प्रिंटर हैं। और यूज टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट, जो कि क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सामने लेकर आते हैं, या जनरेट करते हैं, अखज़ करते हैं रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो ये दो इंतहाई अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर एज आ सिस्टम के अंदर। उसके कंपोनेंट्स हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंपोनेंट में पहला हम पढ़ चुके हैं इंटरफेस कंपोनेंट, इसके दो पार्ट्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में शामिल है कीबोर्ड एंड माउस, जबकि आउटपुट में हमारे पास शामिल है मॉनिटर एंड प्रिंटर। कंपोनेंट्स का दूसरा पार्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग कंपोनेंट। पहले है इंटरफेस कंपोनेंट, यूँ समझ लें ये हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास सामने फिज़िकल शक्ल में मौजूद होते हैं। अब हमारे पास आएगा प्रोसेसिंग कंपोनेंट, जहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं या कौन से पार्ट्स हैं जो कि एक्शन या टेक पार्ट हिस्सा ले रहे होते हैं। द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है वो कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, वो सीपीयू पर मुश्तमिल है। सीपीयू के ऊपर नंबर 1 लिखा है कि ये नंबर 1 इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है। इसे एक कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। विच एक्ट एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्यूटेशन एंड एक्सिक्यूटिंग कमांड, जो कि कमांड जिस तरह की उसको दी जाती है उसके मुताबिक वो कंप्यूटेशन करता है, हिसाब किताब करता है और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो लेकर आता है। यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दी गई है 2+2। ये हम कमांड देंगे कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए से 2+2 इज़ इक्वल टू, तो फिर ये कमांड जाएगी कंप्यूटर पर कीबोर्ड के ज़रिए से, और इसको जो इसका रिज़ल्ट होगा वो सीपीयू प्रोसेस करके आंसर की सूरत में हमारे पास लेकर आएगा मॉनिटर के ऊपर। तो ये हमारा कहलाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये जो हम कमांड देते हैं उस कमांड के मुताबिक, उस इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक जो रिज़ल्ट है, जो एक्सिक्यूशन है, वो हमारे सामने लेकर आता है। सेकेंड प्रोसेसिंग में आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो टाइप्स की हैं। एक मेमोरी होती है टेम्परेरी, आर्जी होती है, जो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है, और दूसरी हमारे पास स्टोरेज होती है, परमानेंट होती है, जहाँ पर डाटा हमेशा स्टोर रहता है जब तक हम खुद उसको डिलीट ना कर दें। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी टू टाइप्स की हैं। इज़ अ ट्रांजिएंट स्टोरेज, ये ट्रांजिएंट स्टोरेज है। आर्जी स्टोरेज है दैट स्टोर डाटा, जो कि डाटा को स्टोर करता है एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द सीपीयू, और सीपीयू को हिदायत देता है। ये आर्जी स्टोरेज है। आदि स्टोरेज से मुराद उस वक्त तक काम करती है जब तक हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, और जब तक हम उसे खुद से सेव ना करें तब तक वो रहती है। वेयर एज स्टोरेज हार्ड डिवाइस आर SSD, जबकि स्टोरेज डिवाइस वो वाली डिवाइस होती है जो कि परमानेंट होती है, और जहाँ पर डाटा उस वक्त तक महफूज रहता है जब तक हम खुद उसे डिलीट ना कर दें। स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, और फ्यूचर की प्रोसेसिंग में वो हमारे काम आता है। तो मेमोरी दो तरह की है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक परमानेंट है जहाँ पर डाटा मुकम्मल स्टोर रहता है, महफूज रहता है, और दूसरी हमारे पास टेम्परेरी है जहाँ हम काम करने के बाद फ़ौरन वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा प्रोसेसिंग में क्या आएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेट कर रहा है, सिस्टम जो फंक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, वो ज़िम्मेदार है कि वो इंफॉर्मेशन ले, रिसीव करे फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस कौन से हैं जो हम पीछे पार्ट्स पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर,
की बोर्ड के ज़रिए से और माउस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन लेता है, यानी हम खुद जो डाटा उसके अंदर डालते हैं। कंपोनेंट्स एंड डिटरमाइनिंग द appropriate एक्शन टू टेक, और उसके मुताबिक क्या करता है, वो एक्शन लेता है। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रोसेसिंग में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमारे पास क्या था, CPU था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास मेमोरी थी प्रोसेसिंग में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क और टेम्परल दो चीज़ें शामिल थी। तीसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, जो इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करे उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट हमें शो करे। नंबर 4 हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की तरफ इशारा करती हैं दैट आर एक्सिक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से काम करता है। व्हेन रिक्वायर, जब हमें किसी चीज़ की रिक्वायर होती है, टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, कि हम उसके ऊपर एक से ज़्यादा टास्क वो कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क कि वो हार्डवेयर से, यानी माउस और कीबोर्ड के ज़रिए से उसके अंदर डाटा डाला जाता है, और उस डाटे के जो डाला जाता है उसका वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस डाटे के मुताबिक वो हमें रिज़ल्ट शो करे। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, और वो जिस जिस तरीके से उन्हें हिदायत दी जाती हैं, उन हिदायत के मुताबिक उन एप्लीकेशंस ने काम करना होता है। फ़र्ज़ करें एक हम एप्लीकेशन है, हमने एक लेटर टाइप करना है, तो लेटर टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, MS ऑफिस में वर्ड टाइप करते जाएंगे, और इस तरीके से हम लेटर, फिर उसके मुताबिक उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ है, कलर है और उसकी सेटिंग है। तो ये मुख्तलिफ उसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो कि काम करते हैं। तो दो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक पार्ट हमने पढ़ा था इंटरफेस, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग। इंटरफेस में हमारे पास क्या चीज़ शामिल है, इनपुट एंड आउटपुट, और दो चीज़ें शामिल हैं। जबकि प्रोसेसिंग में हमारे पास 4 पॉइंट शामिल हैं। एक हमारे पास है CPU, दूसरा हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तीसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और चौथा हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर एज अ सिस्टम। पहले हमने इंटरफेस कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब हम कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इंटरफेस कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि एक्शन लेते हैं, और उन एक्शन के ज़रिए से कोई रिज़ल्ट, कोई नतीजा, कोई आउटपुट, कोई कमांड के ज़रिए से हमें रिज़ल्ट मिलता है। अब हम करेंगे बात कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स पर। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स कौन सी हैं, ये अलग से भी सवाल आएगा। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स विद इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स के साथ, और इसकी अलग से डेफिनेशन भी आएगी, डिफाइन कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन गुफ्तगू से निकला है, बातचीत से निकला है, एक दूसरे के साथ कैसे बात की जा सकती है। मेन पार्ट्स क्या है बातचीत का, अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए, तो इसी से ये कंसेप्ट निकला है। और आगे पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट। इसके अंदर फिजिकल एलिमेंट्स शामिल हैं। फिजिकल एलिमेंट्स कौन से हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कि प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्राहम करते हैं कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कम्युनिकेशन कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, और फिज़िकल एलिमेंट्स आपको बताया है कि कौन से एलिमेंट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके दरमियान। इन अ कंप्यूटर, अब यहाँ पर उनकी बात हो रही है, द मदरबोर्ड। इट इज़ अ image of a motherboard that serve as the primary circuit board that interconnect
all component by using cable and circuit. जी स्टूडेंट, आपके सामने मदर बोर्ड का एक इमेज दिखाया गया है। ये मेन सर्किट बोर्ड है जो कि कनेक्ट करता है ऑल ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड्स etc. It also provide power to each component and allow to communicate with each other. तो ये मदरबोर्ड का इमेज है जिसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं ताकि आपके ज़हन में कंसेप्ट जो है वो मदरबोर्ड का क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कंपोनेंट में मदरबोर्ड के बाद दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है सिस्टम बस। A system bus is a collection of electrically conductive cables. सिस्टम बस क्या है? ये मजमुआ है, बहुत ज़्यादा है। By using electrically conductive केबल्स का मजमुआ है जहाँ से करंट का फ्लो होता है। दैट ट्रांसमिट डाटा बिटवीन द CPU एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट, जो कि क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। किसके ज़रिए से? CPU के ज़रिए से, और दूसरे इंटरकनेक्टेड जो उसके साथ दूसरे जुड़े हुए इंटरकनेक्ट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस 3 किस्म की हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस? तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बसेस: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। These buses provide the flow of data. उनका काम क्या है कि वो डेटा को फ्लो करना। एड्रेसेस ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा को एड्रेस करना या हिदायत को फॉलो करना। एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द CPU टू अदर कंपोनेंट कॉन्करेंटली। और फिर क्या करती हैं कि वो सिग्नल भेजती हैं CPU से दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ, दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो क्वेश्चन आपका अलग से भी आ सकता है, एक्सप्लेन या डिफाइन सिस्टम बस। और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस? तो पहले आपने सिस्टम बस की डेफिनेशन करनी है। और सिस्टम बस यहाँ से शुरू करना है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ electrically conductive cable that transmit data between the CPU and all other interconnected components. यहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा सिस्टम बस डिफाइन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आगे से देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ बसेस, और उसके बाद डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो ये आपका टॉपिक जो होगा कम्युनिकेशन कंपोनेंट, इसमें से 2 पार्ट है। एक है मदरबोर्ड जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होती हैं, और सेकेंडली उसके बाद आएगा सिस्टम बस जिसके अंदर 3 बसेस हैं: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक इमेज है बसेस का, वो आप देख रही हैं। 3 टाइप्स की बसेस हैं: कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बस। कंट्रोल बस का क्या काम है वो एरो के ज़रिए से आपको समझ आ रहा है। एड्रेस बस का क्या काम है और डाटा बस का। ये एक कम्युनिकेशन पाथवे है दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट्स लाइक CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये इसलिए दिखाया गया है ताकि इसके ज़रिए से आप सिस्टम बस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें, और उसकी 3 टाइप्स जो हैं: डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस एंड देयर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है? डिस्क्राइब इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स विद स्टेप। स्टेप के साथ हमने बताना है कि कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है, कैसे वो काम करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है उसके पार्ट हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। टू परफॉर्म टास्क, के जो काम उन्हें दिया चाहे वो उसे मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल, When you open a file, जब आप एक फ़ाइल को ओपन करते हैं यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड, माउस या कीबोर्ड के ज़रिए से, सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट जो पार्ट्स हैं इंटरेक्ट
وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سیملیسلی بغیر کسی رکاوٹ کے ٹو میک دس ایکشن ہیپن، تاکہ یہ جو ایکشن ہے وہ ہیپن ہو سکے، وہ وقوع پذیر ہو سکے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو انٹریکشن امنگ کمپوننٹس، جس کی ڈیفینیشن ہے کہ مین مقصد کیا ہے کمپوننٹس کا انٹریکشن کرنے کا، کہ دا مین مقصد یہ ہے ٹو پرفارم ٹاسک، کہ وہ ٹاسک کو ہے وہ کمپلیٹ کرے جو اسے دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ جب آپ ایک فائل اوپن کرتے ہیں ماؤس یا کی بورڈ کے ذریعے تو مختلف قسم کے کمپوننٹس آف کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کام جو ہے آپ کا ہو سکے۔ ہیئر از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن آف دا پروسیس، اور یہاں پر ایک ایک اسٹیپ کے ذریعے سے آپ کو اس پروسیس کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یوزر ایکشن آر ان پٹ، یہ ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 1 ہے کہ ہم اسٹیپ نمبر 1 کہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ کوئی بھی اپلیکیشن جب ہم نے کام کرنا ہے تو ان پٹ سے اسٹارٹ کرنی ہے۔ یو ڈبل کلک آن اے فائل آئکن، فائل آئکن پر ہم نے کیا کرنا ہے، ڈبل کلک کرنا ہے یوزنگ یور ماؤس کے ذریعے سے، آر پریس اے کی کمبینیشن، یا کی کمبینیشن کے ذریعے کی پریس کر کے ٹو اوپن اے فائل کو اوپن کرنا۔ سب سے پہلا ایکشن جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے وہ کیا ہے، ہم نے ان پٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، ڈبل کلک کرنی ہے فائل آئکن پر ماؤس کے ذریعے سے یا پھر کی کے ذریعے سے۔ فار ایگزامپل یو ڈبل کلک آن اے ڈاکومنٹ، مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکومنٹ پر ڈبل کلک کرتے ہیں، نیم رپورٹ ڈاکس آن یور ڈیسک ٹاپ۔ آپ ایگزامپل دی گئی ہے کہ یہ ایگزامپل کے طور پر یہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پر ایک فائل پڑی ہے، آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ فائل کیا ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گی۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے، ان پٹ ڈیوائسز کا۔ دا ماؤس آر کی بورڈ سینڈ آ سگنل ٹو دا کمپیوٹر۔ کیسے کام ہو رہا ہے، ماؤس یا کی بورڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے، سگنل دے رہا ہے ٹو اے کمپیوٹر انڈیکیٹنگ دیٹ یو وانٹ ٹو اوپن دیٹ فائل، کہ آپ اس فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو رپورٹ ڈاکس فائل تھی جو کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر پڑی ہے، آپ نے جب ڈبل کلک کیا ہے تو ڈبل کلک سے مراد ہے ماؤس کے ذریعے سے یا کی کے ذریعے سے، تو آپ نے ڈائریکٹ ہدایات دی ہیں کی بورڈ کے ذریعے سے ٹو دا کمپیوٹر کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے، ہنٹ دیتے ہوئے، اشارہ دیتے ہوئے دیٹ یو وانٹ ٹو اوپن دا فائل، کہ آپ اس فائل کو اوپن کرنا چاہتی ہیں۔ فار ایگزامپل دا ماؤس سینڈ سینسری ان پٹ ٹو دا کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم تھرو دا USB کنیکشن، اور اس کے لیے ایگزامپل یہ ہے کہ ماؤس کیا کرتا ہے، یہ اشارہ دیتا ہے سینڈ سینسری ان پٹ، سینسری کہتے ہیں سینسز سے نکلے ہوئے کو، سینس سے باڈی پارٹ کے ٹچ کے ذریعے سے، ان پٹ ٹو دا کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کو کہ وہ ان پٹ کرے سسٹم تھرو دا USB کنیکشن کے ذریعے سے، کہ کس طریقے۔ تو یہ 2 اسٹیپ تھے جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹس کے درمیان جو ہے انٹر کنیکٹ کیسے ہونا ہے، کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ٹاپک کیا تھا، کمپیوٹر ایز اے سسٹم، اس کی ڈیفینیشن تھی، اور ڈیفینیشن کے بعد اس کے آبجیکٹیو تھے، پھر اس کے کمپوننٹس تھے۔ کمپوننٹس میں سے مین 3 کمپوننٹس سے، ایک ہمارے پاس انٹرفیس کمپوننٹس تھا جس میں ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز تھی، دوسرا ہمارے پاس پروسیسنگ کمپوننٹس تھا جس کے اندر ہمارے پاس 4 میجر پوائنٹس تھے، جن میں سے ایک CPU کا تھا، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، دوسرا ہمارے پاس پروسیسنگ میں تھا رینڈم ایکسیس میموری، پرماننٹ اینڈ ٹیمپریری میموری، پھر ہمارے پاس تھا آپریٹنگ سسٹم اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کمپوننٹ تھا کمیونیکیشن کمپوننٹ، اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک مدر بورڈ تھا اور ایک سسٹم بس۔ پھر ان کے فنکشن تھے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ اسٹیپ پر بتایا گیا تھا کہ ان کمپوننٹس کا آپس میں انٹریکشن کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور پھر اینڈ پر بتایا گیا ہے کہ یہ کمپوننٹس پارٹس آپس میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔